Hello students. In last lecture we have studied kinetics portion in which we have seen how to calculate how to come out with the equations using second law of motion, and we have seen three cases. For first case for the pulley and string, second case for inclined plane with pulley string and block, and third case for the lift. So today we are going to solve some numericals using the same concept. Okay, so let's start with our 11th lecture. So student, this is our first question for the kinetics. So before beginning the question, because it's in this there is no specific steps to do, because if you have done a lot of practice, then it will be like that you can do these questions directly. But in preliminary stages, you need to follow some steps like in this question, firstly you need to draw the FDP, free body diagram, and after that you just assume one acceleration, direction of acceleration, and apply the equation which I have told you earlier. Okay, so let's begin with this question. So just read the question. Find P, the force which is applied here, to prevent slipping of block B, this block B, over block A. This is inclined block is block A. Assume all the surfaces to be smooth. Okay, all surfaces to be smooth. So one thing which is wrong in this figure, that there is a surface below it. Right, and this surface is fixed. This surface is fixed, and inclined plane can freely move on this surface. This is 0 because smooth surface is given. This is also 0. Okay, so all surface to be smooth. This surface is smooth. That means in this surface, block A can move freely, and over this surface of A, block B can move freely. Okay, so just we will try to do the FBD of this. So just draw the FBD. I have already marked points where force is asked is to be mounted. So let's name. So first look the FBD of this block A. Firstly, the weight MAG will mount from the center of this A, block A. Because of this, there is surface जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ओवर दिस ब्लॉक ए. तो मैंने अज्यूम किया वो है एन डैश, राइट, एन डैश normal reaction for the block A, which is given by the floor to this block. Okay, just delete this because it's not. Okay, yeah. So this one is P, and this pink one is normal reaction which is given to block B, and I assume it N. ठीक है, सेम नॉर्मल रिएक्शन किसको मिल रहा होगा? ब्लॉक बी को मिल रहा होगा, बिकॉज एवरी रिएक्शन हैज इट्स इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. तो अगर बी को नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो कौन दे रहा है? ब्लॉक ए दे रहा है. तो ब्लॉक ए को भी एक नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा जस्ट अपोजिट टू दिस डायरेक्शन. ओके, सो एज आई हैव ड्रॉ द एफबीडी, अज्यूम कर लेता हूं कि इसका एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पी, डायरेक्शन है उसकी इस साइड. ओके, towards the right. I assume this A. मैंने एक्सेलरेशन A assume कर लिया. क्लियर? जस्ट वन मोर थिंग, आप यहाँ पे जो एंगल है वो निकालने की कोशिश करते हैं. अगर ये एंगल बन रहा है इस प्लेन पे और इस प्लेन पे, दैट मीन्स इसके परपेंडिकुलर ये है एन और इसके परपेंडिकुलर ये, तो जो थीटा होगा ये होगा, राइट? क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं. इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन है और बेस के परपेंडिकुलर आपका ये वाला डायरेक्शन है. ठीक है, तो
परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। आई अज्यूम एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। लेट्स मूव टू दिस। अब ये एफबीडी बनाते हैं। ये सिंपल आपका, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, एम बी इंटू जी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस इंक्लाइन सरफेस थी एक ही, उसे परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। एंड देयर विल बी, ओके, दिस इज दीज आर द फोर्स माउंटेड, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, फाइंड द पी, फोर्स पी टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक बी ओवर ब्लॉक ए, ठीक है। अगर प्रिवेंट करना है स्लिपिंग के लिए, दैट मीन्स दिस ब्लॉक हैविंग अ सेम एक्सेलरेशन जो ब्लॉक ए का है, क्योंकि देखो स्लिपिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स ये क्या फिक्स्ड है इस पे। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो ये फिक्स है, मतलब ये स्लिप नहीं कर रहा, मतलब वहां पे फिक्स्ड है। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का होगा सेम एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का होगा, तो इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर। सेम चीज यहां करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हमने देखा ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, और ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ओके, so one more angle I need to find the component of this n. So vertically opposite, this is the angle, and this will be our n sine theta, okay. And this one component is n theta, okay. Same, we will do this here, ये आपका n sin theta, और ये आपका n theta, ओके। सब कुछ कर लिया, कंपोनेंट्स भी ब्रेक कर लिए, जस्ट राइट द इक्वेशंस। अब इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ acceleration. So P is supporting force, it will come positive, minus n sine theta equals to mass into net acceleration. Mass यहाँ पे आएगा ठीक है, into acceleration, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ acceleration। वो क्या होगा, वो होगा n sine theta equals to m into acceleration. And there will be one more equation in vertical, or in this direction, in the direction of weight. We can say that n cos theta equals to n k. From here we can calculate k, acceleration. इन दो इक्वेशन से हम acceleration निकाल, just by dividing we get tan theta equals to nb, sorry, nb a upon, simply we get a equals to e tan theta, and if we put अच्छा, यहाँ से पहले वैल्यू ऑफ एन एस एन साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो आ जाएगा एन, एम बी इंटू जी टेन थीटा, ठीक है। सो इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन, तो पी माइनस एम बी इंटू टेन इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से पी आ जाएगा ए
ओके, तो इन दिस वे बहुत बहुत कम स्टेप्स लिखे हमने। देखिए, हमने सिंपल इक्वेशंस लिखी है, 3 इक्वेशंस लिखी हैं और अपना मैथ वाला पार्ट किया है और हमें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम चीज हमारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने पहले क्या करा, हमने पहले एफबीडी बनाया, ब्लॉक ए का, ब्लॉक बी का, एसिलेशन एज्यूम किया डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखा एसिलेशन अगर इसका ए है तो इसका कितना होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक इस यहाँ पे चिपका हुआ है, स्लिप नहीं कर रहा है, दैट मींस ये रेस्ट पर है इस पे, उसका भी एसिलेशन सेम होगा। ठीक है, तो उसके मानते हुए इन डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन हमने निकाला इक्वेशन और उसके परपेंडिकुलर निकाला। जो हमने परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाली वो क्यों निकाली, ताकि हमें एसिलेशन यहाँ से निकल पाए। ये हमें देखना होगा। हम यहाँ पे ये कर सकते थे, एंड डैश को हम कर सकते थे यहाँ पे, बट हमें एंड डैश की तो रिक्वायरमेंट कहीं नहीं थी। ये जो आपको तब आएगा जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे इस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और ये लिख सकता था कि एन डैश माइनस एन ए जी माइनस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। बट ये इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी दूर दूर तक। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम लिखते तो हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम और लगता, इतना भी नहीं, बहुत हल्का सा, बट जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हमें मालूम है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, बट ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी। ओके, टाइम सेव हो जाएगा, पर प्रैक्टिस करने की जरूरी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन सेकंड। In this question, let's read. Inclined plane block is fixed on the floor. Okay, this inclined plane block is fixed on the floor. If all the surfaces are smooth, then find the acceleration of block A. This is a block A, and acceleration of block B. This is a block. Okay, so there are two pulleys. These two pulleys are massless, and this string is also massless and inextendable. If not given in this question, we will assume this. Okay, and there is mass also given. Ma is having the mass m, mb is having the mass 2m. Okay, just excuse me for the sizes because size a is more. So, but okay, let's assume it's having the mass m, it's having the mass 2m. Okay, so what we will do, we will just draw the FBD of these. Okay, so what we have to do, we have to find the acceleration of block A and block B. Okay. In this question, before drawing the FDP, बस थोड़ा सा एक थिंकिंग के लिए, फॉर द थिंकिंग कि किस तरह से एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा। अज्यूम करता हूँ कि एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक बी आपका हैवी है, तो डेफिनेटली ब्लॉक बी विल मूव डाउन एंड ब्लॉक ए विल मूव अप। तो मैंने ये मान लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज गोइंग टू डायरेक्शन एज शोन, एंड ब्लॉक बी का डायरेक्शन जो होगा बॉटम होगा। ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि ये ए है, जो ब्लॉक ए जा रहा है, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो अगर ये ए एक्सेलरेशन जा रहा है, तो मान लो यहाँ से एल लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से गई, एल लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से रिलीज हुई, तो वो एल लेंथ की स्ट्रिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी इस वाले पोर्शन में भी और इस वाले पोर्शन में। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सपोज एल लेंथ आपका ब्लॉक ए मूव करके टुवर्ड्स अप, सो यहां से एल लेंथ की स्ट्रिंग रिलीज होगी एंड दिस एल लेंथ स्ट्रिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन दिस टू। ठीक है, इन दोनों में इक्वली जो एल लेंथ रिलीज हो रही है यहां से पुली वन से, ये पुली वन है, ये पुली टू है। पुली वन से एल लेंथ रिलीज हुई तो यहाँ पुली टू पे दोनों स्ट्रिंग में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये एल चला है तो ये बी चलेगा 2l, एल बाय 2। अगर इसकी वेलोसिटी v है ए ब्लॉक की, तो इसकी वेलोसिटी होगी v बाय 2। सेम अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो b का एक्सेलरेशन क्या होगा, a बाय 2। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ बस मैंने थिंकिंग के लिए बताया आपको। नाउ ड्रॉ द एफबीडी।
तो यहाँ से स्ट्रिंग है टेंशन टी, और यहाँ पे टेंशन देखते हैं कितने, सपोज को कि वो सेम स्ट्रिंग लगी पूरे में। तो अगर ये टेंशन मैं मानता हूँ कि टी है, ये सेम स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन ये भी टी होगा और ये भी टी होगा। अब याद करो जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया था, ऐसा कुछ पढ़ाया था अरेंजमेंट। अगर ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है और ये मासलेस पुली है, तो डेट मीन्स इसमें टेंशन होगी वो कितनी होगी, दोनों के बराबर होगी, डेट मीन्स 2t। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ जो टेंशन आने वाली है वो होगी टी, क्योंकि ब्लॉक ए है। नाउ वी विल माउंट द वेट। यहाँ जो वेट होगा बॉटम वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज 2m g, this m as the weight, as the mass of mb is 2m and mass of ma, mass of a is m। ठीक, सो ये हमने पहले ही कर लिया, ये आपका एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन ए बाय 2 से जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी आपके एंगल्स हैं वो देख लेते हैं। मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो एंगल थीटा ये आपका इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी और इस बेस के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। तो जो एंगल थीटा होगा दिस विल बी डेट, ये आपका एंगल थीटा होगा, थीटा। तो दिस component will be mg cos theta, थीटा। ठीक है, इक्वेशन लिख लेंगे। सपोर्टिंग फोर्स आपका टी है, टी माइनस एम जी थीटा। यहाँ पर मैंने एक एफ बी टी का फोर्स छोड़ दिया नॉर्मल रिएक्शन का, तो यहाँ लग रहा होगा, पूछ ही रहे होंगे सर अधूरा है। तो हम अभी इक्वेशन लिख रहे हैं इन द डायरेक्शन। ओके, so this will be equals to mass a। ठीक, अब मेरे को वैसे कायदे से ये भी लिखनी चाहिए, उसका यूज नहीं है, बट अब लिख लेते हैं। जीरो इसकी लिखेंगे, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सपोर्टिंग फोर्स आपका 2mg है, तो 2mg माइनस वाइस ऑफ टेंशन इक्वल्स टू मास इसका 2m है, सो 2m एक्सेलरेशन देखा हमने कैसा आया 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। यहाँ से वैल्यू ऑफ ए निकल आएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ ए निकल के आती है। So from here we got a acceleration by solving this equation, we got a equals to g by 3। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ से टेंशन निकाला, ये टेंशन हमने यहाँ पुट किया। ठीक है, ये पुट करने के बाद ए टर्म से अलग करके जी टर्म से अलग कर दिया, यहाँ से m कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस 1 माइनस साइन 30, एंगल हम 30 गिवन है। ठीक है, 30 गिवन है, तो साइन 30 इज 1/2, 1/2 माइनस 1 किया तो ये हाफ आ गया, और यहाँ पे 3/2 ये करके यहाँ पे ये आ गया दिस। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या था, इट इज a/2, दैट मीन्स a is g/3, that means acceleration of block B is g/6 and acceleration of block A था और वो कितना है g/, okay, so we have calculated the acceleration of block A and block B। yes, आई होप एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, सेम तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is our third question. Find the mass of block C, या आपको block C है, such that the block B will not slip। ठीक है, the block B will not slip over block A। ब्लॉक A पे ब्लॉक B स्लिप नहीं करे। ठीक है, इन दैट केस फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक C। ठीक है,
कुछ सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। हमने ये देखा था फोर्स यहाँ लगा हुआ था, और हमने ये निकाला था कि ब्लॉक बी स्लिप ना करे ब्लॉक ए पे। कंडीशन चेंज हो गई है। अब यहाँ पे पूछ लिया कि मास क्या है। कुल मिला के क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो जस्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन में इसलिए ताकि आप देख पाओ कि एक्सेलरेशन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। सपोज अब जैसे मास ये एम है यहाँ पे, ठीक है। सारी सरफेस क्या है, स्मूथ है, ऑल सरफेस आर स्मूथ। यहाँ पर आपका म्यू 0, ठीक है, सारी सरफेस स्मूथ है आपकी। हेयर ऑल्सो म्यू 0, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इस ब्लॉक को मूव करेगा कौन, ये मास मूव करेगा। ये मास पूरी स्ट्रिंग से अटैच है और ये पूरी सेम स्ट्रिंग है। डेट मीन्स यहाँ पे जो टेंशन होगी, सॉरी, यहाँ जो टेंशन होगी वो टी होगी, और यहाँ जो टेंशन होगी वो भी टी होगी, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगी, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। देखो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम सेम बनाने वाला हूं, बिकॉज अब ये इस पे चिपका हुआ है। सो वी विल अज्यूम दिस एज सिंगल बॉडी, विल अज्यूम दिस एज सिंगल बॉडी। सो लेट्स डू द फ्री बॉडी डायग्राम थिंग। वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन मैं अज्यूम करता हूं ये है ए, यहां कितना होगा देखते हैं। देखो यहां से एल लेंथ की स्ट्रिंग निकली और यहाँ पे कितना गई, एल लेंथ गई। दैट मीन्स अगर यहाँ से एल गया तो यहाँ पे भी एल पहुंचा। यहाँ से अगर वेलोसिटी स्ट्रिंग की होती वी तो यहाँ पे वी होती, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता स्ट्रिंग का वही एक्सेलरेशन यहाँ होता। दैट मीन्स जितना एक्सेलरेशन इस पूरे ब्लॉक का है सेम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्री डायग्राम की तरफ। मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो विल डू द डायग्राम। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है इस ब्लॉक में, इट विल गिव टेंशन टी, ठीक है। और इन डायरेक्शन में इसमें कोई है नहीं। मैं इन दोनों का कंबाइंड मास अज्यूम कर लेता हूँ। आई सपोज कि इनका यहाँ पर सेंट्रॉइड है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कंबाइंड मास में अज्यूम कर लेता हूँ और उसका नॉर्मल रेशियो देता हूँ, ठीक। जसुदा देविंग, ये आपका टेंशन, दिस इज एम ए प्लस एम बी इंटू जी, कंबाइंड मास लिया मैंने। ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन कंबाइंड दोनों का, ओके। ये ब्लॉक फिक्स है इस पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका एसेलरेशन, इसका जो एसेलरेशन है पूरे ब्लॉक का वो हमने अज्यूम किया है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया ना। इसमें ऑलरेडी टेंशन ड्रॉ है और यहाँ पर सिर्फ एक वेट आना रह गया, एम सी इंटू जी। हमने देखा कि एसेलरेशन कहाँ है, एसेलरेशन डाउनवर्ड है, दिस इज माय नेट एसेलरेशन। अब लिखेंगे इक्वेशन, इसके लिए जो इक्वेशन होगी। अब देखो, अब हम बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमें ये नॉर्मल रिएक्शन का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली दो इक्वेशन लिखनी है हमको। टेंशन, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो हमें मालूम पड़ेगा, फ्रिक्शन भी करेंगे हमसे इसके बाद। तो टी, फोर्स किसकी वजह से, टेंशन की वजह से हो रहा है। टेंशन इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू acceleration. Here, supporting force mcg minus t equals to mca. Okay, now from these two equation, we will calculate the acceleration. ठीक है, इसको यहाँ पुट करोगे, we will get, तो अगर आप पुट करते हो, we will get a a को यहाँ ले जाएंगे, that means mc ma, एक एक्सेलरेशन आ गया। नाउ जो पार्ट मैंने छोड़ दिया, जो मैंने एफपीडी नहीं बनाया ब्लॉक बी का सेपरेटली, वो आपको करना होगा। इट इज द सेम थिंग एज वी हैव डन इन द क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में क्या करा था हमने, ये एफईडी बनाया था ब्लॉक बी का। ब्लॉक बी का एफईडी बनाने से हमें मालूम पड़ा था कि ये दो इक्वेशन को डिवाइड किया था तो यहाँ से एसिलेशन आया था, ठीक है। तो सेम एसिलेशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो एसिलेशन, यहाँ पे भी दो इक्वेशन आएंगी,
सेम दो इक्वेशन आएंगे। योर एन डैश एम ई जा रहा है यहाँ पर एन डैश साइन थीटा ई एन डैश सॉरी और ये साइन थीटा विल गिव द एक्सेलरेशन। से डिवाइड कर दोगे विल गेट ए इक्वल्स टू साइन थीटा एंड इन दोनों आइसोलेशन को आप इक्वेट कर दोगे यू विल गेट एम सी और एम सी यहाँ से निकल के आ जाएगा एम ए प्लस एम बी एन थीटा देन दिस विल बी योर एम सी जो सोल्यूशन निकल के आएगा आफ्टर इक्वेटिंग दिस टू। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने जल्दी कर दिया, ये पार्ट हमें पहले क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है, वहां देख लेना जाके। सो वी गॉट द मास ऑफ ब्लॉक सी लाइक दिस। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our question 4. Let's read. If truck is having acceleration a, find theta. Let's see what it is. Suppose this is truck, and this truck is moving ahead with the acceleration of a. Okay, and there is some bob. This is bob, which is fixed over the ceiling of truck. ठीक है, ट्रक की सीलिंग पे एक बॉब फिक्स्ड है विद सम स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे ही आपका ट्रक आगे मूव कर रहा है दिस बॉब विल मूव बिहाइंड। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपने एक 12th में टर्म पढ़ा होगा, 12th 11th में, सूडो फोर्स। यहाँ पे एक तरह से सूडो फोर्स लग रहा है इस पे, इस बॉब पे सूडो फोर्स लग रहा है विच विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सूडो फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है इट इज सेम एज जिससे आपकी बॉडी मूव कर रही है, और जो मास होगा इट विल बी द मास ऑफ दिस बॉब। सपोज ये मास ऑफ दिस बॉब इज एम, सूडो फोर्स जो उस पर लगेगा वो लगेगा एम इंटू ए। ठीक है, एम इंटू ए लगेगा, और यहाँ पे टेंशन होगी टी स्ट्रिंग में। ठीक, तो लेट्स डू दिस। कंसिडर कर लेता हूं कि ये स्ट्रिंग है, एट द एंड यहाँ पे बॉब है। एज आई टेल यू कि इस पर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ ट्रक एक सूडो फोर्स लग रहा होगा अपोजिट पे, दैट विल बी मास इनटू ए। देखो, अगर आपको सूडो फोर्स समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज से मत करो। अगर आपको इससे नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इससे नहीं करना, पहले से भी करा देता हूँ, उसको उससे भी करा दूंगा। ठीक है, इसमें एक टेंशन है यहाँ पे टी। ठीक है, और इसका मास है, और हमसे ये पूछा गया है कि जो ये वर्टिकल से एंगल सस्पेंड कर रहा है ये स्ट्रिंग, ये थीटा हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर लैमिनीज लगा दो, यहाँ लैमिनीज लगा देते हैं। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, इट विल कम आउट टू बी 180 माइनस थीटा, दिस होल एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो लैमिनीज लगा लेते हैं, एम ए अपॉन
क्या अपोजिट ये वाला एंगल है, sin 180 इक्वल्स टू एम जी, ये वाला फोर्स लिया, ये एंगल कितना होगा, ये भी सेम होगा 80 माइनस थीटा, नहीं 180 माइनस थीटा नहीं, ये होगा प्लस थीटा, तो राइट इट साइन प्लस, ठीक है, यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ए से ये, okay, okay, acceleration is given, we need to find the theta, theta is tan inverse, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, क्वेश्चन एक्सेलरेशन गिवन है, तो दिस इज आवर एंगल, एंगल निकल, हाँ, अब मैं क्या कह रहा था, अगर आपको इस स्यूडोफोल से नहीं करना, कैसे करना है, अब वो देख लो, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके, और ये बॉब मास लग रहा है इसमें की तरफ, ये टेंशन, ये ठीक, एक्सेलेरेशन कहाँ है इस बॉब का, अगर एज अ होल लेते हैं, एक्सेलेरेशन कहाँ है, यहाँ पर, मान लिया एक्सेलेरेशन यहाँ, ठीक, अब हमें लिखनी है इक्वेशन फॉर टेंशन एंड दिस, ये जो कंपोनेंट होगा टेंशन का, दिस कंपोनेंट टेंशन क्या होगा, दिस इज cos 90 थीटा, अब ये जो कंपोनेंट होगा टेंशन का, ये होगा 10 sin 90 थीटा, ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं, आपका सपोर्टिंग के लिए जो एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन है वो ये वाला फोर्स है, तो T cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू का मास m इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से आपका ट्रक मूव कर वो भी मूव कर, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर लेते हैं, तो वो हो गया T sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू m थीटा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, ये बन जाएगा, क्योंकि 90 माइनस है, ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन डिवाइड करोगे, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, ये सेम चीज आ गई, tan थीटा इक्वल्स टू a बाय g, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय, क्लियर, आपको स्यूडो फोर्स थोड़ा समझ में आ गया हो तो स्यूडो फोर्स से कर लो, नहीं तो जो अभी मैंने कराया ये तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, क्लियर, ओके, so with this we finish our this thing now, we will add from here friction, which we will do in our next lecture. So that's it, student, we will meet in next lecture, thank you.